So the topic today is magnetic force on current carrying conductor inside uniform magnetic field. Okay, so we have to connect this to previously studied concept about this. So we have already done with this thing. Okay, suppose these are the two magnetic poles, north and south. So there is a uniform magnetic field between them. और उसके बाद if there is a current carrying wire in which current is moving out of the plane of the paper. So in which direction the magnetic force acts on it? We use Fleming's left hand rule for that, FBI. ठीक है, FBI, force, magnetic field and current. So you have to point your first finger towards magnetic field, which is north to south, and you have to point your second finger in the direction of flow of current, which is out of the plane at the moment. So current is outward and this is north to south. So thumb will give you the direction of thrust or force जो कि upwards है. So it means कि this wire is going to experience a magnetic force which will be in upward direction. ठीक है. अब हमने आज इसके ऊपर लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था कि व्हाट इज द रीजन फॉर दिस फोर्स इंटरेक्शन ऑफ फील्ड एंड क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड एंड देन स्ट्रॉन्ग फील्ड पुशेस द वायर टुवर्ड्स वीकर फील्ड. वी वर डन विद दैट. फैक्टर्स भी हमने देख लिए थे. तो टुडे वी हैव टू लुक फॉर अगेन इट्स फैक्टर्स एंड इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स. Okay, beta. So the first factor for magnetic force is obviously the strength of magnetic field. B is magnetic field strength. Okay, magnetic field strength. So stronger B would result in greater magnetic force. मतलब ये कि if you make these poles stronger, then this force is going to increase. Second factor is current in the wire. Current in the wire. So obviously if you increase the current in the wire, then it will result in greater magnetic force. And how that can happen? You know, a stronger or greater current would create greater magnetic field around it. Okay, stronger magnetic field. So this results in greater magnetic force. The third factor is length of conductor. Length of conductor means you know, if more length of the wire is inside the magnetic field, then more parts of wire will experience the force. So as a result, the force is going to increase. It's actually more parts of wire, longer length, more parts of wire exposed in magnetic field. So hence more force. The last factor is angle. So magnetic force is proportional to sine theta, where theta is angle between B and I. Okay, so the magnetic force is directly proportional to sine theta. I'll tell you later about why it is sine theta, not cos or tan. But magnetic force is proportional to sine theta, where theta is the angle between B and I. What is B? B is the magnetic field due to poles. तो ये B है नॉर्थ से साउथ, और I क्या है? करंट कैरिंग वायर में करंट. तो करंट क्या होता है? 90 डिग्री पर है. करंट 90 पर है ना. करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर हम देखें तो एट द मोमेंट दे आर परपेंडिकुलर. जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है एंड करंट इज मूविंग आउट. सो इफ यू लुक एट द एंगल बिटवीन देम, लाइक दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट, so the angle between them is what? 90 degree, right? Okay, so if we combine all these factors together, combining all factors, so we will get this magnetic force proportional to BIL sine theta, BIL sine theta, right? So magnetic force is BIL sine theta, BIL sine theta. Now we need to assign a constant. तो यहाँ बेटा constant k है, k बिल sin theta. यहाँ पे बेटा ये जो k है ना, ये equal to 1 होता है इसमें. तो that's why हम इसका new expression लिखेंगे बिल sin theta, BIL sin theta. So ये है magnetic force का expression.
राइट। अब देखो इनडायरेक्टली आपको ओ लेवल से पता है ये बात, लेकिन ओ लेवल्स में ये नहीं पढ़ा था। ओ लेवल से ये पता है कि अच्छा ये फोर्स कैसे ज्यादा करनी है, भाई मैग्नेटिक पोल्स को स्ट्रॉन्ग कर दो, तो वो क्या है असल में, वो बी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। फिर ये भी आपको पता है करंट ज्यादा कर दो, करंट ज्यादा, ये तो ओ लेवल से पता है आपको, तो करंट हो गया। उसके बाद लेंथ ऑफ कंडक्टर इन वायर लूप्स, ये आपको लूप्स की फॉर्म में पता है कि वो जो डीसी मोटर थी उसमें नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दो तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स बढ़ जाती है। तो लूप्स बढ़ाने से क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो दैट्स व्हाई ये यहाँ पे लेंथ आ गया। एंगल जो है इसका ओ लेवल्स में नहीं आपने पढ़ा हुआ था, क्योंकि ओ लेवल्स में सिर्फ एक चीज होती थी, 90 डिग्री पे ही बताते थे, या 0 या 90, ठीक है। तो इसका अभी हम डिस्कस डिटेल से इसको कर लेते हैं। अच्छा, तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। इट मींस के व्हेनेवर देयर इज अ करंट कैरिंग वायर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड यू हैव टू मेजर एनी ऑफ दीज क्वांटिटीज, स्पेशली मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो यू विल बी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। डायरेक्शन के लिए हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो यूज किया था। ओके, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बेटा इस पे एंगल पे, एंगल बिटवीन बी एंड आई। अच्छा बेटा, अगर हम एंगल 0 डिग्री रखें तो इसका क्या मतलब होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है कि जिस तरफ करंट है मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरफ है, मतलब करंट कैरिंग वायर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मतलब ये वायर इस तरह है ना, ये वायर ऐसे है ना, इसको मैं पकड़ के यूं कर देता हूं इस तरह, तो आप देखो वायर में करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दोनों क्या होगी, पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो आपको पता है साइन 0 अगर मैं करूं तो साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 0 इज 0, तो इसका मतलब है यहां साइन 0 लगाएंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो बी आई एल 0 इंटू 0, तो ये मैग्नेटिक फोर्स 0 आ गई आपके पास। उसके बाद अगर हम ये करते हैं कि 90, क्योंकि हम इन दो से पहले से फेमिलियर है 90 और 0, तो अगर हम 90 रखते हैं तो लेट्स से बी इस तरह है और आई इस तरह है, तो ये इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है जो अभी करंट पोजीशन है, ठीक है। तो इस केस में देखो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1, ठीक है। तो अब अगर आप यहां उसकी जगह साइन थीटा की जगह 1 लगाओगे तो ये बी आई एल 1, तो मतलब ये बी आई एल हो जाएगा जो मैक्स फोर्स है, ये मैक्स है, सबसे ज्यादा फोर्स होती है 90 पे। उसके बाद अगर आप एंगल चेंज करो, ठीक है, लेट्स से अगर 30 और 45 और 60, क्योंकि इसका ग्राफ भी आता है बनाने के लिए, मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसका हम ग्राफ प्लॉट कर सकें। तो अगर साइन 30 हो तो आप यहां पे मतलब लेट्स से कि ये बी है और ये करंट है, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में एंगल ये 30 बन रहा है, राइट। मतलब हमने वायर की पोजीशन चेंज की ना ताकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री पे आ जाए। तो साइन 30 क्या होता है, 0.5 होता है। इसका मतलब है आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी 0.5 ऑफ मैक्स फोर्स, बिकॉज दिस इज योर मैक्स फोर्स, ये मैक्स फोर्स है ना, ठीक है, बी आई एल इज मैक्स फोर्स। तो इधर अगर मैं 0.5 लगाऊं तो 0.5 बिल आ जाएगा, बिल तो मैक्सिमम फोर्स है, दैट्स व्हाई ये 0.5 ऑफ मैक्सिमम फोर्स, मतलब फोर्स यहाँ हाफ होगी। अगर मैं 45 करूं तो साइन 45 क्या होता है, 0.707, तो इसलिए ये जो अब आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आएगी दैट विल बी 0.707 ऑफ मैक्स, मतलब थोड़ी सी बढ़ गई है। और उसके बाद अगर मैं साइन 60 करूं तो साइन 60 आता है 0.866, तो इसका मतलब है कि आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0.866 एफ मैक्स है, ठीक है। अब हमने ये करना है, ये जो चीजें हमने लिखी है ना इसका हमने एंगल ग्राफ बनाना है। ग्राफ किन चीजों के बीच में बनाना है, एक एफ एम का बनाते हैं और एक हम बनाते हैं साइन थीटा का, तो इन दोनों का हमने ग्राफ प्लॉट करना है, विच इज फोर्स एंगल ग्राफ जिसको बेसिकली कहते हैं। और उसके अंदर वी हैव ऑल द वैल्यूज, देखो इट्स वेरी सिंपल। यहां चूंकि साइन थीटा है, अब अगर हम कॉस लगाएं ना तो कॉस में वो वैल्यूज बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं, क्योंकि हमें ये चीज पता है कि यार 90 पे हमें मैक्सिमम फोर्स चाहिए, तो अगर मैं यहाँ कॉस लगाता तो कॉस 90 0 हो जाता है, इसका मतलब है उसमें 0 हो जाता, दैट्स व्हाई हम यहाँ कॉस नहीं लगा सकते, ठीक है। एक मतलब इसकी यहाँ पे जस्टिफिकेशन जो है वो ये बनती है कि व्हाई वी हैव यूज्ड साइन थीटा ओवर हियर, क्योंकि हमने
एक्सपेरिमेंटली देखा हुआ है कि 90 डिग्री पर ही मैक्सिमम फोर्स लगती है। तो हम देखेंगे यार थीटा अकेला तो हम कहीं भी नहीं लिख सकते, हमें हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में लिखना होता है, साइन या कॉस या टैन लिखना होता है साथ। तो अब हम उनमें से कौन सा चूज करेंगे ताकि वो इस कंडीशन को पूरा करे कि यार 90 डिग्री पर फोर्स मैक्सिमम है, क्या साइन क्या कॉस क्या यूज करें? तो हम कहेंगे भाई साइन को यूज करेंगे, राइट, बिकॉज साइन 90 क्या होता है 1 होता है। दैट्स वाई यहाँ 1 आएगा। 1 का मतलब है कि यहाँ 1 लगाओगे तो फिर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी बी आई एल की। आप कुछ पूछ रहे हो? sin 45 और sin 60 की एग्जैक्ट वैल्यू याद करनी है कैलकुलेटर में यूज कैलकुलेटर वाली, ऑफ कोर्स कैलकुलेटर वाली यूज करोगे ना, तो ये भी वही वैल्यूज हैं, ये कैलकुलेटर वाली वैल्यूज ही हैं। फिर जो मैथ में हम यूज करते हैं वो नहीं करनी? हाँ, मैथ में जो हम यूज करते हैं वो नहीं करनी? जो स्क्वायर रूट वाली यूज करते हो, स्क्वायर रूट 2, नहीं 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 वो नहीं यूज करनी। मतलब वो अगर आप कैलकुलेशन में यूज करना चाहते हो तो आप कर लो, कोई मसला भी नहीं है, मतलब अभी नो प्रॉब्लम इन दैट। अच्छा जी, अब हमें डस्टर देखना पड़ेगा। सरौन वहाँ देखिएगा, ये ऑफिस में ना डोर के साथ ही बास्केट पड़ी हुई है, टेबल उसके अंदर पड़ा होगा सर डस्टर। अच्छा जी, तो देखें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, ये सिंपल सिर्फ फैक्टर वाले ही, फैक्टर से ही हमने इक्वेशन बनाई है और इक्वेशन से हमने आगे ये एंगल वाला चूंकि ट्रबल मेकर होता है इसलिए हमने एंगल वाले को अलग से भी डिस्कस किया है, ठीक है। बाकी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बी एंड आई एंड एल दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। थैंक यू। अच्छा जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ग्राफ अभी बनाते हैं इसका ग्राफ, फोर्स एंगल ग्राफ। ओके बेटा, 30 ओके बेटा, 30 60 और 90 ये एक्चुअल ग्राफ इसी तरह आएगा। लेट्स से 3 मार्क का ग्राफ है, राइट, और ये आपको एक्स एक्सिस पे वैल्यूज गिवन है, वाई एक्सिस पे वैल्यूज नॉट गिवन, ठीक है, वैल्यूज नॉट गिवन। तो आपने स्केल खुद करना होता है, स्केल योरसेल्फ, लेकिन वो कोई प्रॉपर स्केल नहीं होता जिस तरह आप प्रैक्टिकल का करते थे कि पूरा मेजर करके, वैसे नहीं करना, ठीक है। एक रैंडम सा स्केल होगा, कैसे, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि यार मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर है, 90 पर, तो ये 90 है और यहाँ हम किसी भी इस वैल्यू को मैक्स रख लेते हैं, तो ये हम प्लॉट पहले कर लेते हैं। सो दिस इज योर एफ मैक्स, इसको 1.0 एफ मैक्स भी लिख सकते हैं, 1 एफ मैक्स, या सिंपल बी आई एल भी लिखा जा सकता है, या एफ मैक्स भी लिखा जा सकता है कि 90 पर फोर्स मैक्सिमम है। अब देखो 30 पर वैल्यू की, अब जब ये आपने कर लिया ना, अब आपको यहाँ से थोड़ी सी स्केल के साथ स्केलिंग करनी पड़ेगी। ये लेंथ मेजर करो, फिर जहाँ उसका हाफ आता है वहां पे 0.5 लिख दो, ठीक है, फिर जहाँ उसका हाफ आता है वहां 0.25 लिख दो, और जो इनका हाफ आता है यहाँ पे 0.75 एफ मैक्स लिख दो। मतलब ये आपको स्केलिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी स्केल के साथ, चूंकि ब्लैंक एक्सेस होंगे, बॉक्सेस तो होंगे नहीं, तो आप प्रॉपर स्केल के साथ इसको करोगे, फिर ग्राफ सही बनेगा, ठीक है। मतलब स्केल के साथ ये लेंथ देखो कितनी है, 10 है, तो 5 पे 0.5 लगा दो, 2.5 पे ये लगा दो, और 7.5 पे 0.75 वाला लगा दो, राइट। अच्छा, अब देखो 30 पे कितने हैं, 30 एंगल पे कितनी थी फोर्स, 0.5, तो 30 पे 0.5 है, ये 30 पे 0.5 हो गया। 60 पे वैल्यू क्या है, 45 चलो बीच में नहीं आ रहा, अभी 60 कर लेते हैं। 60 पे क्या है, 0.866, तो 60 पे आपने 0.866 ढूंढना है, तो 0.866 किधर होगा, तकरीबन इन दोनों के हाफ में आएगा ना, ऑलमोस्ट, तो ये इधर आ गया, ठीक है। मतलब ये कि एक्स एक्सिस की वैल्यूज वुड ऑलरेडी बी गिवन, वो आपको पता होंगी कि क्या है। उसके बाद आपने जो वाई एक्सिस वाला है ना, वो आपने खुद मार्क करना होगा, स्टार्ट करना होगा एफ मैक्स से, और नीचे आपने स्केलिंग खुद करनी होगी। जब ये कर ली
उसके बाद अगर आप स्केल से प्रॉपर स्केलिंग करेंगे आपका ग्राफ बिल्कुल 100% करेक्ट बनेगा। लेकिन अगर ऊपर नीचे स्केलिंग हो गई, मतलब ये 0.5 छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया, फिर आपका ग्राफ थोड़ा जाहिर है आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, फाइनली आपने इन लाइंस को आपस में कनेक्ट कर देना है, इन पॉइंट्स को, ठीक है। तो जीरो पे हमें पता है, जीरो पे जीरो होता है, जीरो एंगल पे फोर्स इज जीरो, तो इसलिए वो पहला पॉइंट इधर है। तो आप यहां से स्टार्ट करोगे और ये आपकी इस तरह की कर्व बनेगी, ठीक है। तो अगर आप थीटा के साथ बनाते हो तो वो कर्व बनती है, लेकिन अगर आप साइन थीटा के साथ बनाते हो तो फिर स्ट्रेट लाइन बनेगी बिल्कुल यूं। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, स्टार्ट और लाइन, स्टार्ट होता है हमेशा ओरिजिन से, ही आपको पता है बात, और लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है कांस्टेंट, जिसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर ये साइन थीटा होगा तो फिर स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, और अगर जो है वो थीटा होगा तो फिर आपकी इस तरह की कर्व लाइन जो है वो बनेगी। ओके जी, इसका सिर्फ बस ग्राफ वाला ही क्वेश्चन आता है, ग्राफ बनाने के लिए वो कहता है तो आप इस तरह बना लेते हो। नेक्स्ट इज मेजरिंग मैग्नेटिक फोर्स एक्सपेरिमेंटली। अब हमारे पास ये है कि एक लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बीच में हमने एक वायर रखी हुई है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है लेट्स से आउट, और इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रही है। हमें कहते हैं कि यार मेजर इट। तो अब वो हमें कहता है कि भाई आप मेजर करके दिखाओ एक्सपेरिमेंटली कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजर करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें कुछ इक्विपमेंट, कुछ चीजें चाहिए होंगी। अच्छा बेटा, जो चीजें इसके लिए चाहिए होती हैं उसको हम कहते हैं करंट बैलेंस, इसको कहते हैं करंट बैलेंस मेथड, करंट बैलेंस मेथड। करंट बैलेंस मेथड क्यों यूज होता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको मेजर करने के लिए आप ये यूज करते हो, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए हम करंट बैलेंस मेथड यूज करते हैं। अब ये बहुत सिंपल मेथड है, वेरी सिंपल। बैलेंस, बैलेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या डिजिटल बैलेंस जो है ना वो यूज करेंगे। तो देखो ये हमने यहां रख लिया डिजिटल बैलेंस, ये अच्छा, इसकी यूनिट ग्राम भी हो सकती है, न्यूटन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और ये टॉप पैन बैलेंस है चूंकि, तो ये लेट्स से इसका पैन है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर ना रखते हैं मैग्नेट, वो जो हॉर्स शू मैग्नेट नहीं होता, हॉर्स शू मैग्नेट, ये वाला, ये रखते हैं। अच्छा जी, ये समझ लो कि ये इस तरह है, ये फॉर इंस्टेंट नॉर्थ है और ये साउथ है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, लेकिन सिंपल सिंपल। अब देखो ये एक मैग्नेट है, इसके बीच में ये जो बीच वाला रीजन है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। फिर इसके अंदर से हम एक वायर गुजारते हैं, ठीक है, इसके अंदर से एक वायर आ रही है, लेट्स से कि ये वाली वायर जो है ना ये इसके अंदर से पास कर रही है,
और इधर फिर इस वायर के साथ ना इसका पूरा सर्किटरी इसके साथ है, मतलब ये एमीटर है, फिर यहाँ पे स्विच है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले फेज में सिंपल वाला फेज करते हैं, तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है और ये बैटरी, मतलब ये एक बैटरी है, ये स्विच है, ये एमीटर है और ये वायर है, P एंड Q वायर है, राइट। अब ये वही वाली, ये जो डायग्राम है ना, इसकी इलिस्ट्रेशन है ये वाली, ठीक है, कि ये रियल टाइम में हमें इस तरह नजर आ रहा है। और अगर हम साइड से सिर्फ मैं यहां से देखूं ना, इधर से इस तरफ से देखूं, ठीक है, मतलब मैं यहां से देखूं तो मुझे नॉर्थ साउथ और करंट मेरी तरफ आ रहा है, ऐसे ही है ना जब मैं यहां से देख रहा हूं। इसलिए मैंने इसका ये वाला व्यू, ये साइड व्यू ये भी बना दिया कि जब आप पोल्स को इनके सामने से देखोगे तो आपको नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, और ये आपको ऐसे फील होगा करंट आपकी तरफ आ रहा है। तो व्हेन करंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, क्योंकि ये पॉजिटिव इधर है ना, यहाँ देखो, जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो ये करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से, और यहाँ से ये P से Q की तरफ आ रहा है। तो P से Q का मतलब है आपकी तरफ आ रहा है, तो इसका ये व्यू फ्रंट वाला ये आपको फील होगा। अच्छा, अब देखो इसमें सबसे पहले अगर स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं है तो जो बैलेंस रीडिंग है वो क्या है फिर? व्हाट इज बैलेंस रीडिंग? लाइक ये जो रीडिंग आपको दिखा रहा होगा, कुछ ना कुछ दिखा रहा होगा ना रीडिंग, वो रीडिंग क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये ग्राम और न्यूटन दोनों में दिखाता है, तो अगर ये लेट से दिखा देता है 25.68 ग्राम, ये ग्राम दिखा रहा है, तो ये क्या चीज होगी फिर? मैग्नेट का वेट। मतलब ये जो है ये मैग्नेट का वेट होगा जो ऊपर पड़ा हुआ है, हाँ, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बैलेंस रीडिंग क्या होगी? मैग्नेट वेट, मैग्नेट मास और वेट। बेटा ये गौर से समझना है, बहुत सिंपल सी ये चीज है। अगर हम स्विच क्लोज कर दें फिर क्या होगा? स्विच क्लोज्ड, फिर जाहिर सी बात है उसमें करंट जीरो नहीं होगा और उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी कुछ लग रही होगी, और जो बैलेंस रीडिंग है वो चेंज होएगी। बैलेंस रीडिंग चेंजेस। अब चेंजेस मैं लिख रहा हूं, चेंज का मतलब है बेटा इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट किस तरफ जा रहा है, राइट? वो अभी मैं बताता हूं उसका। देखो आपने लेट से हमने ये स्विच क्लोज कर दिया यहां से और करंट यहां से गया। अब जब बेटा करंट यहां से गया, आप जरा इसकी गौर से देखना है, इसकी रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि रीजन क्या है। आप मुझे ये बताओ कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, सो इन विच डायरेक्शन द वायर इज गोइंग टू एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे ही है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट देखो इधर आ रहा है, ये देखो ना, नॉर्थ से साउथ उस तरफ, और करंट किधर आ रहा है? मेरी तरफ आ रहा है। तो मैंने ये फिंगर सही पॉइंट की हुई है ना करंट की तरफ, तो थंब किस तरफ है? थंब किधर है? अपवर्ड्स, ऐसे ही है ना। बेशक इस पे लगा लो ना, इस पे भी तो यही है, ये सेम यही वाली चीज है, तो फोर्स इज अपवर्ड। तो आप ये कहोगे कि इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अपवर्ड है। एंड व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फोर्स? दिस इज एक्शन फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट ऑन वायर, ठीक है। तो एक्शन की फोर्स किस पे लगी? वायर पे। तो अब यहां पे आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स एवरी एक्शन इज हैविंग इक्वल बट ऑपोजिटली डायरेक्टेड रिएक्शन। तो रिएक्शन फोर्स कौन लगाएगा? वायर। किस पे लगाए, किस पे लगेगी रिएक्शन? जो एक्शन लगा रहा है। तो एक्शन फोर्स कौन लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट? मैग्नेट लगा रहा है, और मैग्नेट वायर के नीचे है। इसका मतलब है अब ये जो वायर है ना, ये एक रिएक्शन की फोर्स लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। सो दिस इज आर। सो आर क्या है? दिस इज रिएक्शन फोर्स ऑन मैग्नेट। अच्छा बेटा, जब और ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं, राइट? तो मैं यहां पे ये लिखूंगा कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स ऑन मैग्नेट, ठीक है। और ये क्या है? ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वही फोर्स वो नीचे लगाएगा, एग्जैक्टली। और उसी से फिर हम वो मास चेंज होएगी तो हमें पता लग जाएगा कि ये मैग्नेटिक फोर्स कितनी है।
So that's why we say using Newton's third law of motion, तो we say कि change in mass, इसको कहते हैं बैलेंस रीडिंग, बैलेंस रीडिंग change equals to magnetic force पर यूनिट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि देखो W इज इक्वल टू mg होता है, तो अगर आप खाली चेंज इन मास देखेंगे तो वो W बाय G होगा। मतलब चेंज इन मास आपको क्या बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय G। जो रीडिंग आएगी चेंज इन मास वो FM ओवर G के इक्वल होगी। तो आप क्या करोगे? मैग्नेटिक फोर्स इज चेंज इन मास मल्टीप्लाइड बाय G, बस आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये जो होएगा ये होएगा डिफरेंस इन बैलेंस रीडिंग, डिफरेंस इन बैलेंस रीडिंग ड्यू टू करंट फ्लो इन वायर। सर वायर मैग्नेट से जुड़ी हुई है? ना और ये 9.8 वायर क्यों जुड़ी हुई है? वायर अंदर से फ्री स्पेस है, उसके अंदर से जा रही है। नॉर्थ पोल उधर है, साउथ पोल उधर है, बीच में से वायर। बेटा मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये लास्ट जो हमने क्लास ली थी थर्सडे को, उसमें मैंने ये बताया था कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे होता है, यहाँ पे नीचे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, इधर ऐसे होती है। वो अभी तो लेफ्ट यूज कर रहे हैं ना, राइट वाला आया तो मैं आपको बताऊंगा। राइट वाला जो है वो करंट मेजर करने के लिए होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, और लेफ्ट वाला फोर्स के लिए होता है। बहुत इजी चीज है, क्योंकि देखो लेफ्ट में एफ आ रहा होता है तो एफ मैग्नेटिक फोर्स होती है, और राइट जो होता है राइट हैंड रूल, उसमें आई आ रहा होता है तो आई इंड्यूस करंट होता है, आई फॉर इंड्यूस्ड करंट, तो इसलिए वो उसके लिए यूज करते हैं राइट हैंड रूल। ठीक है, ओके। सो बेटा देखो, अब जो आप बात पूछ रहे हो ना, जब इस पे एक्शन की फोर्स ऊपर लगेगी तो कौन लगा रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है, तो ये रिएक्शन की फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड पे लगेगी, और मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ जुड़ी हुई है? पोल्स के साथ, इसलिए मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर फोर्स लगेगी। ठीक है, तो उससे क्या, आप मुझे बताओ इस रिएक्शन फोर्स से बुजर बताओ क्या होना चाहिए? रीडिंग बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? मतलब इफ वी प्लेस समथिंग ऑन अ बैलेंस और हम उसको पकड़ के और नीचे पुश करें तो क्या होगा? बैलेंस रीडिंग इंक्रीज होएगी ना। तो दिस मींस के दिस बैलेंस रीडिंग इज गोइंग टू इंक्रीज नाउ। ठीक है, जब ये इंक्रीज होएगी तो जो वैल्यू न्यू आएगी उसमें से प्रीवियस वैल्यू हम माइनस करेंगे, तो वी विल गेट दैट magnetic force value. So finally FM कैसे निकालेंगे? FM हम बेटा निकालेंगे रीडिंग डिफरेंस ऑन बैलेंस between current zero and current non zero। ठीक है, माइनस नहीं मल्टीप्लाइड, और ये किलोग्राम में होनी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 9.81। ये ऊपर बात जो मैंने बताई है वही बेसिकली वही वाली चीज मैंने दोबारा लिख दी है यहां पे। अच्छा अब देखो, अगर मैं करंट डायरेक्शन चेंज कर दूं फिर क्या होएगा? अगर मैं यहां से मैग्नेट पोल स्वाइप कर दूं या फिर बैटरी टर्मिनल स्वाइप कर दूं, फिर क्या होएगा? अब मास जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वायर पे फोर्स नीचे लगेगी और वायर मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स ऊपर लगाएगी। तो आप समझ लो मैग्नेट को आपने रखा हुआ है और आप उसको हल्का सा ऊपर उठा रहे हो। जब आप हल्का सा बैलेंस से किसी चीज को ऊपर उठाते हो, जिस तरह लोग अक्सर एयरपोर्ट पे करते हैं लगेज के लिए, 2-3 किलो का डिफरेंस हो तो करते हैं लोग ऐसे, देखा है कभी आपने? नहीं देखा? अच्छा, मैंने 2-3 दफा देखा है कि वो थोड़ा सा उसको पुश कर लेते हैं, पकड़ के ऐसे पुश कर लेते हैं, तो वो क्या होता है कि वेट थोड़ा सा उधर से कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो वो मतलब कोई भी बैलेंस के ऊपर चीज रखी, आप उसको पकड़ के हल्का सा ऊपर करोगे ना तो वो कम हो जाएगी रीडिंग। तो यहाँ भी यही होता है कि जब आप करंट डायरेक्शन चेंज करोगे तो वायर पे फोर्स नीचे लगेगी लेकिन मैग्नेट पे फोर्स ऊपर लगेगी, जिससे बैलेंस रीडिंग रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन whether the reading increases or decreases, we treat it in the same way। हम देखेंगे वो मास कितनी है। एंड वन मोर चैलेंज कैन बी कि ये मास आती है
वो यूजुअली मास मिलीग्राम में देता है आपको या ग्राम्स में देता है, तो मिलीग्राम या ग्राम को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू किलोग्राम. दिस इज चैलेंज, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर चेंज इन मास मैं कहूं आ रही है 25 मिलीग्राम, हाँ 25 मिलीग्राम, ये बेटा इस पे टेंस लगाओ. तो अब आपने बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स कितनी है. हाँ, अगर ये 25 मिलीग्राम और ये इंक्रीज है, दिस इज इंक्रीज, तो हाउ मच इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वायर? फर्स्ट यू विल कन्वर्ट दिस इनटू किलोग्राम. सो मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को आप चेंज करने के लिए क्या करोगे? मिली को करोगे -3 और फिर ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए फिर -3 करोगे, डबल. तो -3 2 दफा होगा, एक दफा मिली को ओवरकम और एक दफा ग्राम को किलोग्राम में. और फिर बेटा जो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी ना, इसको हम 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास न्यूटन में आंसर आएगा. ठीक है, कोई करो जरा न्यूटन में कितना आता है? -6 -5 आएगा, मे बी 6, और ये आएगा 25 इंटू 10⁻⁻5, ऑलमोस्ट ये आएगा. So 2.4527 into 10 negative 4 आता है ना, -4. ठीक है, तो देखो दिस वैल्यू इज 25 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, या मैंने इसको माइक्रो में प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिया. अच्छा, ये भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, A2 में ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, क्योंकि वो AS की चीजें देखो, आप अगर सिलेबस कंटेंट देखो तो योर फर्स्ट चैप्टर जो है ना वो पार्ट ऑफ A2 होता है. मेजरमेंट्स इज पार्ट ऑफ A2. कैसे पार्ट ऑफ A2 है? डायरेक्ट आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा, उसकी अनसर्टेनिटीज पेपर 5 में चेक करवाता है, वहां आप देखोगे क्वेश्चन 2 में पूरा अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन है. और उसके बाद जो उसके बाकी प्रीफिक्सेस वाले कॉन्सेप्ट हैं वो पूरे फिजिक्स में वो लेके आता है. कैसे? वो कहते हैं यार आप अपना आंसर माइक्रोमीटर में, माइक्रो न्यूटन में बताओ कितना है. आपका आंसर क्या निकला है? 25 इंटू 10⁻⁵. अब आपने उसको माइक्रो में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज फ्रॉम AS चैप्टर 1 कन्वर्जन प्रीफिक्सेस. ठीक है, तो इजी वे आउट इज कि आप कैलकुलेटर से करो. कैलकुलेटर में ये लिखो ना 25 इंटू 10⁻⁵, और फिर आप उसमें SD या ENG दोनों में से कोई एक बटन प्रेस करो, ENG या SD, तो वो आपको पावर 6 में खुद करके दे देगा. ठीक है, तो जब -6 हो जाएगा तो वी नो के माइक्रो जो है वो -6 होता है, उसको हटा के उसकी जगह माइक्रो लिख देंगे. सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 250 माइक्रो न्यूटन. हाँ, लिख सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज ये एक लिहाज से साइंटिफिकली इनकरेक्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इनकरेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि इसके लिए होता है कि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो इट शुड बी 2.5 नॉट 25. मतलब आप ये नहीं लिख सकते, आप 25 10⁻⁵, आंसर इज करेक्ट, बट टेक्निकली द वे यू आर राइटिंग इट इज इनकरेक्ट. तो टेक्निकल वे इज 2.5 करके लिखो, फिर ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद. इसलिए वो यूजुअली इसमें नहीं, वो प्रीफिक्स में कहता है कि आप इसको प्रीफिक्स में लिख के दिखाओ, तो क्योंकि प्रीफिक्स में तो वो कंडीशन ही खत्म हो गई ना, पावर 10 की खत्म हो गई, तो दैट्स व्हाई आप इसको इस तरह लिखते हो 250